مرکزی وزیر مملکت برائے سیاحت پرلاحد سنگھ پٹیل کا کہنا ہے کہ بھدروا وادی میں سیاحت کے وسیع امکانات ہیں، تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تعلق سے مقامی افراد اور سیاحوں کا نظریہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مرکزی وزیر نے اپنے ایک روزہ بھدروا دورے کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب وادی سے کوئی منفی خبر آتی ہے تو تمام تر خوبصورتی کے باوجود سیاح یہاں آنے سے گریز کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھدروا وادی میں سیاحت اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے یہاں بنیادی ڈھانچے کی فراہمی اور بہتر سڑک رابطے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھدروا کو ہماچل اور پنجاب سے جوڑنے والی سڑکوں کو ترجیحی بنیادوں پر اپ گریڈ کیا جائے گا اور بھدروا کے لیے ایک گنڈولا پروجیکٹ پر زیر غور ہے۔ بعد میں مرکزی وزیر نے کمیونٹی ہال کوٹلی سے موبائل سائنس ایگزیبیشن بس کو ہری جھنڈی بھی دکھائی۔ میں پہلی بار بھدروا آیا ہوں، بہت سندر جگہ ہے، سنتا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں آپ سے پہلا نویدن کروں گا جو میں نے منتری بنتے ہی دلی میں سبھی اسٹیک ہولڈر سے کہا تھا، ہم سب اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم کوئی کسی کے پرتی اسپردھی نہیں ہے۔ ٹورزم کے لیے پیسہ چاہیے، بالکل صحیح ہے، پیسہ بھارت سرکار پچھلے 5 برسوں میں مودی جی نے ٹارگیٹ کیا، دے رہی ہے، لیکن جو دوسرا ہی بات ہے اس سب کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا، وہ ہے پرسیپشن کا بدلنا۔ میں کہتا ہوں ہندی میں کہ دھن سے زیادہ ضروری ہے دھارنا کا بدلنا۔ وادی کشمیر میں زندگی تیزی سے معمول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے لال چوک اور سری نگر کے دیگر حصوں میں دکانیں دیر سے کھلی رہیں۔ درجہ حرارت میں کمی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سردی کی وجہ سے نل اور آبی ذخائر منجمد ہو گئے ہیں۔ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3.7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں 4 مہینوں سے زیادہ وقفے کے بعد نماز ادا کی گئی ہے۔ مسجد کی صفائی کے بعد وہاں ظہر کی نماز ادا کی گئی۔ مقامی افراد نے نماز پڑھی۔ اس موقع پر وادی کشمیر کے حالات میں سدھار کے لیے خصوصی نماز ادا کی گئی۔ مصلیوں نے نماز جمعہ کی اجازت دینے کی بھی انتظامیہ سے اپیل کی۔ اللہ سے گزارش ہے، دعا ہے ہم کو یہ خانہ خدا کھلا رہے، ہماری مسلم نہیں ہو رہی، یہ جامعہ بند نہیں ہونا چاہیے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ دعا کریں گے کہ جمعہ کی نماز ہونی چاہیے۔ وادی میں حالیہ مہینوں کے دوران پیدا شدہ حالات کی وجہ سے کشمیر کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ KCCI کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 4 مہینوں کے دوران کشمیری تاجروں کو تقریباً 18,000 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا ہے، جبکہ 4,96,000 افراد اپنے روزگار سے محروم ہوئے ہیں۔ پیش ہمارے چیف رپورٹر پرویز بٹ کی ایک خاص رپورٹ۔ وادی کشمیر میں اس بار نامساعد حالات کا سب سے طویل مرحلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تقریباً 5 مہینے گزرنے کے باوجود تجارتی سرگرمیاں پوری طرح معمول پر نہیں لوٹی ہیں۔ ان 5 مہینوں کے دوران تاجرین کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ کتنا نقصان ہوا اس کے اعداد و شمار حکومت کے پاس نہیں ہے۔ حکومت نے حال ہی میں پارلیمنٹ کو جانکاری دی کہ کشمیر میں تجارتی سرگرمیوں کو ہوئے نقصانات کی کوئی مخصوص رپورٹ نہیں ہے۔ تاہم کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ KCCI نے 2 علیحدہ سروے کرائے ہیں۔ ایک سروے GDP کی اساس پر ہے تو دوسرا سروے صنعتوں کے الگ الگ شعبوں کے مطابق ہے۔ GDP سروے میں پتا چلا ہے کہ 120 دنوں کے عرصے میں کشمیر کی معیشت کو تقریباً 17,800 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ وہیں شعبہ جاتی سروے میں 14,000 کروڑ کا خسارہ بتایا گیا ہے۔ KCCI کے سیکرٹری جنرل ناصر حامد نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صرف سیاحتی شعبے کو ہی 1,000 کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سروے میں ٹورزم، ہارٹیکلچر، ایگریکلچر، ہوٹلز، ٹرانسپورٹ سمیت دیگر شعبے شامل کیے گئے ہیں۔ ناصر حامد کے مطابق سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ 4.96 لاکھ افراد اپنے روزگار سے محروم ہو گئے ہیں۔ بیسڈ آن دا GDP J&K کی GDP جو تھی اور اکانومک سروے 2017-18 جو تھا اس پہ بیس کر کے سیکٹر وائز اسسمنٹس کر کے جو اماؤنٹ آتا ہے دیٹ از اراؤنڈ 17,878 کروڑ۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جاب لاسز بھی بہت ہوئے ہیں۔ سیکٹر وائز اسسمنٹس کے حساب سے تقریباً 4,96,000 جابس جو ہیں وہ لوز ہو گئے ہیں، یا ورک ڈیز جو ہیں وہ لوز ہو گئے ہیں لوگوں کے ان 4 مہینے میں 120 ڈیز میں۔
KCCI ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी तस्करा किया है कि तरक्याती कामों के फैसले और तिजारत से मुताल्लिक उमूर में यूटी इंतजामिया की जानिब से इदारे को हाशिए पर रखा जा रहा है। KCCI ने कश्मीर में मुस्तकबिल करीब में की जाने वाली सरमायाकारी को लेकर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये भी मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है उसने मिलके जो ये रिपोर्ट वगैरह तैयार की है, इसमें हमने क्लियरली मेंशन किया कि ये रिपोर्ट इस इंटेंशन से नहीं है कि हमें कोई कंपनसेशन या पैकेज मिले, बट जस्ट टू पुट ऑन रिकॉर्ड कि जो करेक्ट पोजीशन इकॉनमी की है वो क्या है, ताकि आगे जो भी पॉलिसीज़ बने उसमें इसको मद्देनज़र रखा जाए कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, स्ट्रेस कहाँ है, डिस्ट्रेस कहाँ है, और अगर कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो कहाँ ज़रूरत है। हालांकि KCCI की इब्तिदाई रिपोर्ट है और 120 दिनों के सर्वे की बुनियाद पर तैयार की गई है। ताहम माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि अगर वादी में हालात जल्द मामूल पर नहीं आएंगे तो नुकसानात इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। बानिहल में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक टाटा सुमो गाड़ी लुढ़क कर बिशलड़ी नाले में गिर गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दीगर 3 अफराद जख्मी हुए हैं। NGO बानिहल वॉलंटियर्स, रेड क्रॉस और पुलिस एहलकारों ने रेस्क्यू कार्रवाई में हिस्सा लिया। महलों की शिनाख्त रामबन की उखराल तहसील के रहने वाले अब्दुल मजीद भट्ट के तौर पर की गई है। जख्मियों को SDH बानिहल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में कुलगाम के मंजूर अहमद और अनंतनाग के निसार अहमद को श्रीनगर अस्पताल रेफर किया गया। रियासी जिले के डेरा बाबा इलाके में एक मिनी बस के पलट जाने से उसमें सवार 29 अफराद जख्मी हुए हैं। बस कांजली से रियासी जा रही थी। तमाम जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रियासी मुंतकिल किया गया। शदीद जख्मी 6 अफराद को GMC जम्मू रेफर किया गया। यात्रियों को फौरन जो है पुलिस वालों ने और हमारे सिविल इंतज़ामिया ने जो है वो मदद करके उनको उसी वक्त एम्बुलेंसेस भेज के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने वो कर दिया। और उसके बाद जब उनकी हमने पहली जो है फर्स्ट एड दे के तो पाया गया कि हमारे 6 जो यात्री थे जिनको थोड़ी गंभीर चोटें आई थी, तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमने उनको जो है वो रेफ़र किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, और बाकियों का जो इलाज है तो वो यहाँ पे अभी चल रहा है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस में SPO की असामियों पर भर्ती के लिए आज कटरा में रिक्रूटमेंट रैली मुनक्किद की गई। जम्मू डिवीजन से 3000 से ज्यादा लड़के लड़कियों ने दरख्वास्त दी है। रेलवे स्टेशन कटरा में SSP रेलवेज की निगरानी में 1500 से ज्यादा उम्मीदवारों का मेडिकल और फिटनेस टेस्ट मुनक्किद किया गया। उम्मीदवारों ने बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लिया। उम्मीदवारों ने कहा कि मुल्क की खिदमत के जज्बे के तहत वो GRP में शामिल होना चाहते हैं, साथ ही उनके रोजगार का मसला भी हल होगा। बहुत अच्छा मौका लगता है कि मतलब हमें कहीं मौका मिल रहा है कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। लेकिन यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, इसके कारण ये हमारे लिए चांस होता है कि हम इसमें सिलेक्ट हो जाएं और कहीं जॉब एप्लीकेशन मिल जाए हमें। खुशी हुई मेरे को इधर आके, यहाँ पे हमें मौका मिल रहा है कि आज हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो रही है, इससे देश के आधे से ज़्यादा जनरेशन जो भी होंगे जो इस टाइम के हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार ले सकते हैं। पुलिस सबसे अच्छी भर्ती दे रही है, किसी सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा है। तो मेरा अनुरोध है सबसे कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे अपना योगदान दें। हमारे पास 3000 फॉर्म्स लगे थे और इसमें आज के दिन तक हमने लगभग आधे जो लड़के हैं उनका टेस्ट ले लिया है। रहा सवाल अपॉर्चुनिटीज़ का, तो J&K पुलिस डिपार्टमेंट ने पिछले 1 साल से हर लेवल पे रिक्रूटमेंट स्टार्ट की है और उसमें उन्होंने प्रोसेस भी कंप्लीट किया है उसका, जैसे वो कांस्टेबल लेवल पे हो, सब इंस्पेक्टर लेवल पे हो, और अब SPOs लेवल पे भी रिक्रूटमेंट चल रही हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलों के चेयरपर्सन्स की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जम्मू में इख्तिताम पजीर हुई। इस कॉन्फ्रेंस में भारी तादाद में चेयरपर्सन्स ने हिस्सा लिया। मुकर्ररीन ने कामकाज के तरीक़ेकार के बारे में जानकारी फराहम करते हुए तकीन की कि वो अवामी स्कीमों का वक्त पर लोगों तक फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोशिशें तेज़ करें। चेयरपर्सन्स ने कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो प्रधानमंत्री के ख्वाब हैं कि गवर्नमेंट को जो है वो निचली सतह पर लाया जाए और सेल्फ गवर्नमेंट का क़याम अमल में रियासत में लाया जाए, उस सिलसिले में ये बेहतरीन कदम है कि हम बॉर्डर के ऊपर हैं
बॉर्डर के ऊपर होने की वजह से हमारा जो इलाका है 90% हमारी लैंड जो है वैकेंट लैंड है। अब करोड़ों रुपया गवर्नमेंट फंड देती है, हार्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, हर चीज़ में फंड देती है, लेकिन वो फंड सही तरीके से वहाँ इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि जब स्कीमें बनती हैं सेक्रेटरीट में बैठ के जो स्कीमें बनाई जाती हैं वो किसी एक जगह को मद्देनजर रख के बनाई जाती हैं और वहाँ की सिचुएशन अलग होती है, जोग्राफिकल या दूसरे तरीके से अलग होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अनाउंसमेंट करी हैं रेनोवेशन की और हमारी सैलरीज़ की, और ख़ासकर जो हमें रेस्पेक्ट मिला है, एक डीसी के दर्जा जो हमको देके इन्होंने नवाजा है, उससे हमारी भरपूर कोशिश यही रहेगी कि हम ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट को, जिसका बहुत फुकदान रहा हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल में, तो उस डेवलपमेंट को आगे ले जाने के लिए हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। हम लोगों के लिए जब अच्छा करेंगे तभी आगे चलेंगे, जब लोगों के लिए अच्छा नहीं करेंगे तो आगे कैसे चलें, खासकर कश्मीर में। क्या क्या सीखा आपने? हमने यहाँ पे सीखा, ये सीख मिली हमें यहाँ पे कि जो हमें पता नहीं था इलाकों में क्या होता है, यहाँ लोगों के साथ क्या होता है, लोग आते जाते दफ्तरों में चक्कर काटते हैं तो निकल जाते हैं, यहाँ पे वो सीख मिली है हमें, लोगों को रेस्पॉन्ड